Okay, there are so many subjects that are being taught to you, right? So regarding that, if you have any view, opinion, no problem, no complaint, only views, and you can express whatever you have in terms of your views. We do not want to listen any problem solving. We cannot solve any problem, but we can be helpful in solving the problems in future. Our job is to assess and accredit this college so that we can, your college can be eligible for conducting many courses, it will be eligible in getting more funds, and it can be eligible to have more students, more infrastructure. So we have come here, but we will not do it. We will just assess the college, the strengths, the weakness, all other things. Then we give report to the NAC. Okay, and then forward that to your college again, they will give you a grade. On the basis of the grade, you get your money, funding. You say, sir, we are students will pass out, what do you do? No. Once you are a student means you are committed to this institution throughout your life. Remember, I never forget my own institution where I passed out. School, college, can you forget? No. You have to contribute to your college, to the institution where you study, where you learn, you become an individual, a human being, real human being. Many of our friends are coming from. So we have been already introduced. Let me again introduce myself. I am J.K. Patnaik. I come from Mizoram. You know where is Mizoram? I don't know where many of you know. Mizoram is the northeast, the southernmost corner, southernmost tip of northeast region of India. You know this? Burma border, Myanmar, इसके पास, और हमारा भाई है वो आए हैं कश्मीर से, ये मैडम आए हैं गांधीनगर गुजरात से आए हैं। आपके साथ बात करेंगे, बहुत सब बात नहीं करेंगे, थोड़ी टाइम बात करेंगे, मगर सब सब्सटेंशियल बात करेंगे। पहले आप बताइए आपका कॉलेज का क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कौन खड़े होकर लड़की और लड़का क्या क्या चीज़ अच्छा है कॉलेज का बारे में, अच्छी चीज बताओ पहले। खड़ा हो जाएगा। नमस्कार सर, हमारे कॉलेज में जो लड़की और लड़के के लिए अच्छी सेवाएं, बस सेवाएं, तो ये जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स वो बहुत दूर से कॉलेज में आते हैं, तो हमारे कॉलेज ने 3 बसेस का आयोजन किया है, दूर से स्टूडेंट आते हैं इसलिए, तो ये बहुत अच्छी सेवा है हमारे। और क्या है हेलो, यहाँ की टीचिंग बहुत अच्छी है, कुछ समझ नहीं आया, यहाँ के पूरे लोग जो है वो बहुत अच्छे से हमसे कम्युनिकेट करते हुए हमें समझाते हैं। अगर दोबारा वापस से अगर दोबारा मुझसे पूछा तो फिर से हमें टीच करते हैं। यहाँ की टीचिंग बहुत अच्छी है। यहाँ सब कुछ स्पोर्ट के जिम और सब कुछ स्पोर्ट के जो सामान होते हैं वो लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल में हमें ये आप कौन से स्पोर्ट्स में है? आप कौन से स्पोर्ट्स में है? सर हमारे यहाँ कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि गाना गाना, नृत्य करना,
इस कॉलेज की अच्छी कुछ अच्छे ट्री प्लांटेशन स्टार्ट किया है कॉलेज में, जिसकी वजह से हर साल बहुत सारे लड़के लड़कियां ट्री प्लांट करते हैं। इसकी वजह से यहाँ बारिश बहुत अच्छे से होती है। Voice. Any other point you want to say? और क्लासरूम में कैमराइज गणपति की बहुत सी सुविधाएं उन्होंने हमारे प्राप्त करी। What I would like to say, good afternoon. Actually, all the teachers staff here, which is a very good sense in the situation of Corona. They are teachers on the PPT preparation for they provide us on our mobile. All the teacher staff here, they provide us a very good facilities for teaching, like supplementary notes out of our syllabus. I would like to say about our teachers. Teachers in the situation of Corona, all the teachers take more efforts for us. हमारे कॉलेज में लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन मशीन लगाया है। ये बहुत अच्छी सुविधा है लड़कियों के लिए। अलग रूम भी बना है कॉमन, वो भी बहुत हमारे यहाँ कॉलेज में कैंपस बहुत मतलब एकदम लैब वगैरह कुछ नहीं, कैंपस बहुत खुला है सबके लिए आने जाने एकदम सेफ सब। अभी ये बोल रहे हैं क्या करने अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बताइए। हॉस्टल की सुविधा हो जाए तो क्या? हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल हो जाए तो बाहर की लड़कियों को भी अच्छी टीचिंग हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स बोल रहे आप, अरे हॉस्टल बोलो यार। हॉस्टल बोली ना अभी, हॉस्टल बोलो ना। हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल भी, बॉयज को तो हॉस्टल चाहिए। और यहाँ पर है ना, अगर हमें टॉपिक के बारे में, अगर सब्जेक्ट के बारे में स्पेशलाइजेशन और मिला तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर BA स्पेशल है, अगर और सारे सब्जेक्ट स्पेशल में मिले प्रोग्राम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये स्पेशल है यहाँ पे। लेकिन अगर बहुत सारे और स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं वो मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने कैंपस में बहुत बार से लड़के आते हैं यहाँ से रोज 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से यहाँ पे सब पढ़ने के लिए आते हैं। बस एक सुविधा हमारे पास है, अपने इधर सब अवेलेबल होता है सबके लिए, तो कुछ कमियाँ रहती हैं। यानी और एक बस की एडमिशन अपने कॉलेज को हो जाए तो और पास के इधर पालखेड़ है, विपरगांव की कोई इच्छा होगी बढ़िया कॉलेज को पढ़ने की, वो भी आ सकते हैं उस सुविधा से। और कुछ जगह पे अपनी बस जा सकते हैं तो उनको कलेक्ट करके अपने कॉलेज पर आ सकते हैं। इधर लड़कियों का कैसा है सर, अभी अपना खेड़वा बसता है यहाँ से कम से कम 10-15 किलोमीटर है, उधर बस जाती नहीं तो क्योंकि लड़कियाँ कम आती है उधर से, तो ज़्यादातर क्या होता है इधर 12 घंटे लड़की ज़्यादा पढ़ सकती है। 12 उसके बाद में क्या होता है, खेती बाड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए लड़कियों को खेतों में काम लगाना वो ज़्यादा आता है। घर के काम होते हैं, सुबह 7 बजे अपने पेरेंट्स हर रोज छोड़ने आ सकते उधर लड़के, मतलब उधर बस सुविधा जाए और अपने कैंपस और एक बस की उपलब्धता हो जाए तो सभी अपने कॉलेज आगे जाए। और कौन है? हमारी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो किताबें उसकी संख्या और ज़्यादा बढ़नी चाहिए ताकि स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ने के लिए जाते किताब देते जो किताब चाहिए वही। अभी गवर्नमेंट के अनुसार अभी पुलिस रिक्रूटमेंट हो गया, आर्मी रिक्रूटमेंट हो गया, ये सब इधर के ग्रामीण भाग के जो बच्चे वो सब ये करते हैं। और यहाँ ग्रंथालय लाइब्रेरी बहुत अच्छी, और हमारे जो प्रोफेसर है भगत सर, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पहले वो शुगर भी की है
कुछ ऐसे एक हफ्ते में एक पेपर लिया गया सबका, वो 50-60 लड़कों का ये क्या सिलेक्ट किए थे, वो अप्लाई करके पढ़ाई करते थे। लेकिन ये कोरोना की वजह से वो सब ठप हो गए और उधर अच्छा पढ़ाई होती है। अभी कोरोना के बारे में आप थोड़ा बताइए। कंफर्टेबली आप टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं, कंफर्टेबली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। जो मैंने सुना है टीचर से पेरेंट्स तो ज़्यादा एक तो ये है कि आपका जो टीचिंग लर्निंग है, जो आपने कहा ऑनलाइन टीचर उसके साथ आपके पास कोचिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। एक जो हमने यहाँ पाया, जो हमने देखा, वो ये है कि टीचर्स भी और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि हमारी जो टीचिंग होती है, टीचिंग लर्निंग, वो मराठी में ही होती है। यानी बात है इंग्लिश में क्यों नहीं, क्योंकि अब तो इंग्लिश का ही ज़माना, हर जगह इंग्लिश कहा, ये लोग तैयार नहीं होते इंग्लिश मैथ सीखने के लिए, इंग्लिश में पढ़ने। तो अगर ये दुश्वारी है, मुश्किल है, तो फिर हमेशा रहेगा, इसको दूर कैसे किया? अगर आज आपको एक दुश्वारी लगती है, कल आपको ये बड़े बन सकता है। कल आप किसी और जगह आप एडमिशन लेना चाहेंगे, MA के लिए, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम होगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, जो स्टेट डिसक्वालीफाइड आपका नहीं होगा। तो आप क्या एफर्ट्स उसमें कर रहे हैं, एक तो ये। दूसरा ये है कि इस दौरान, कोरोना के दौरान, क्योंकि टीचिंग क्लास वगैरह नहीं हो पाया, एडमिशन तो जारी है, तो फीस वगैरह आपको भर रहे हैं, कॉलेज को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, एडमिशन की या ट्यूशन की, एग्जामिनेशन की, तो आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? उनको शायद यह है कि नहीं दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ये कुछ है इसका जानकारी आप बता सकते हैं? और तीसरी बात यह है कि लाइब्रेरी हमने देखी आपकी, लाइब्रेरी में कोई ज़्यादा बुक्स नहीं है, कम ही है। या तो आपको आदत नहीं है वहाँ जाने की, फिर पढ़ने की या और करने की, तो ऐसे ही रखा है उधर में तो कुछ किताबें, बाकी आप नोट से काम चलाते होंगे या पुराने नोट से। उसे लगता है नहीं कि लाइब्रेरी में कम जब बुक्स को लगता है कि शायद अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई का ये मतलब नहीं कि आप क्लास में आएंगे वो आपको पढ़ाए, पढ़ाई का मतलब आप बुक्स लेके खुद पढ़ेंगे, खुद पढ़ना है ना। और वहाँ पर मैंने 95% बुक तो मराठी में ही थी, इंग्लिश में है नहीं। तो इस पर आपको सोचना चाहिए। अगर आज आप सोचेंगे, कल जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए सहूलियत हो जाएगी। अगर आज आप टैलेंट एक्सेप्ट करेंगे ना इंग्लिश का, कल जो दूसरे बच्चे आएंगे आपके भाई में, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांग स्टेक होल्डर है इसी इंस्टीट्यूट में, ये इंस्टीट्यूट सोसाइटी का, इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी टीचर्स का भी। तो आपको अपना रोल अदा करना है, आपको कंट्रीब्यूट करना है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होगा आपका कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी चैलेंज उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। बाकी जो फैसिलिटीज होती है वो धीरे धीरे फिर आ जाती है। आपने कहा पोस्ट की फैसिलिटी वो भी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। आपने कहा कुछ नए कोर्स आ गए वो भी आ जाएंगे, गैप के बाद ये अप्लाई करेंगे। लेकिन ये चीज़ तब होती है जब लगता है कि नहीं ये आगे बढ़ रहा है, आगे ग्रो कर रहा है, तब ये ग्रो होते होते ये भी बढ़ रहा है सब चीज़ों है ना। इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से इसका ग्रो करना है। और सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि बाकी जो आने वाले हैं उनको भी इस बारे में आपको बता देना है, इंफॉर्मेशन देनी है। जनरली क्या होता है कि जो हमें लगता है कि आसान, हम उसी को पकड़ लेते हैं। मराठी में पढ़ने आसान पढ़ते हैं। लेकिन मैंने इतना उसमें देखा, मैंने मुझे पूछा क्या स्टैटिस पढ़ा के कहा आपको बच्चा लेता ही नहीं। स्टैटिस के ऊपर स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स वो बहुत ही ज़रूरी होता है एप्लीकेशन में, रिसर्च में तो ज़रूरी है। जिसने स्टैटिस नहीं पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा, वो रिसर्च नहीं कर सकता।
खासतौर से इकोनॉमिक्स में या मैनेजमेंट में या कॉमर्स में नहीं कर सकता। पॉलिटिशियन कर सकता है या बाकी जो लैंग्वेज कर सकता है, लेकिन जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जिनका रिसर्च बेस होता है इन चीज़ों में, तो इसके लिए चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और फिर मैंने ये भी देखा है कि BA के बाद पुराने उसमें ज़्यादा लड़के लड़कियों ने आगे नहीं पढ़ा, M.Com या MA के लिए नहीं गए, बहुत कम गए। इसके ये भी वजह हो सकती है कि आपका शायद जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है कमज़ोर है, तो इसको आप एज ए टैलेंट इसको आप कन्वर्ट करना अपॉर्चुनिटी दें ताकि बाकी लोगों के लिए सुविधा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप जो पढ़ते हैं BA में है, B.Com में है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप कुछ जॉब करना चाहते होंगे, पर यहाँ पे बताया है कि अर्न एंड लर्न चल रहा है कि स्टूडेंट यहाँ पे काम करते हैं और अर्न भी करते हैं, उसके साथ लर्निंग भी करते हैं। तो ऐसा कौन सा आप लोग वर्क करते हैं यहाँ पे, कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं कॉलेज को? NSS में क्या करते हैं आप जिससे आप अर्न कर सकते हैं? कोई बोलो, दिस इज अ टू-वे कम्युनिकेशन। मैं और लंबे एक साथ थी, फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन लिया, तब 2000 आई में फर्स्ट टर्म के लिए और सेकंड टर्म के लिए। तो यहाँ पर हम सब लड़कियाँ लड़के मिलकर कॉलेज की रिगार्डिंग ही काम करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर इसके बारे में बताना है तो लाइब्रेरी में जाकर बुक्स के बारे में वहाँ पे उनको मदद करना, यहाँ पर उनको मदद करते हुए हमें यहाँ पर मालूम हो कि इतने सारे बुक्स भी आते हैं, तो बहुत सारे वर्क के डिपार्टमेंट में भी काम किए हैं हमने। साइड में जो ट्रीज वगैरह भी जो बड़े बड़े दिख रहे, जब मैं फर्स्ट यहाँ पे एडमिशन लिया था तो ये छोटे थे, जब हमने साइड के जो मुझे पता नहीं से हिंदी में क्या कहते, पर जो छोटे छोटे त्याला मराठीमध्ये गवत म्हणतात पण हिंदीमध्ये काय म्हणतात ते मला माहीत नाही। हां, तर ते काढण्यासाठी आम्ही केलं। यहाँ पर जो बाकी के साइड में ईंटें लगाए थे वाइट कलर की ईंटें हैं, तो वो लगाना, हंसी मजाक भी सब काम किए थोड़े बहुत, तो उस पर अर्न भी हुआ और लर्न भी हुआ। और NSS में NSS में भी थी मैं, तब यहाँ पे सिरवाड़े पे एक गाँव है, सिरवाड़े का यहाँ से आगे, वहाँ पर हमने क्या कहते हैं, हिंदी की वजह से रही हो रहा, पर उस पर हमने पानी के ऊपर जो एक छोटा सा पुल बनाया था, वहाँ पे पानी रहेगा तो वो गाँव वालों के लिए भी वो सब है। वो हिंदी की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या बोलूँ क्या नहीं, तो बस उसमें भी बहुत कुछ लर्न हुआ, एक साथ काम करना वगैरह। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुना और कुछ नोट भी किए, उसका आधार पर हम भी चिंता करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग तो बोलते नहीं ऐसे इम्प्रूव करना है, 5-6 पॉइंट वाला, ठीक है? आप चाहते तो दे सकते हैं और लिख के भी, ठीक है? अभी आपको बहुत धन्यवाद, आप थोड़ा वेकेट कर दीजिए, हमें अलुमनाई आएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। Vice Chancellor, Mirzapur University, Professor Ghulam Bhatt, Member Coordinator, Dean Central University of Kashmir, Dr. Hina Patel, Member, Principal, Mahila Arts College, Gujarat. I am heartily welcome to all of you, sir. Then I am welcome to all parents, the alumni of our college. The team want to interact with you. alumni. Namaste. Good afternoon and namaskar. आपका कॉलेज, आपका गांव का कॉलेज, हम
इसके बारे में सोच सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। और इस सिलसिले में हम तीन तरह लोग को भेंट करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स का पिता माता जो है। तो हम अभी छात्र लोगों के साथ बात किए थे, उनका सुझाव भी लिया था, उनका ओपिनियन भी लिया था। वो बहुत खुश है कॉलेज के बारे में, मगर कॉलेज को कैसे इम्प्रूव करा जाए उसके बारे में भी हमको बताया। अभी मैं पहले पेरेंट्स के साथ बात करूंगा, उसका बाद पुराने छात्रों के साथ बात करेंगे। पेरेंट्स का इतना एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है, जो अनुष्ठान में उनको बच्चों को छोड़ते हैं, उधर बच्चे ठीक से पढ़ाई करते ना नहीं, उनके सुविधा ठीक है ना नहीं, इसके बारे में चिंता रहता है। खाली ये नहीं कि पैसा खरीद दे दो, फीस भर दो, बच्चा की बच्ची पढ़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। आपका एक दायित्व रहता है, चिंता रहता है, दायित्व भी रहता है। मेरा बच्चा जो कॉलेज में पढ़ता है, मेरा बच्चा उसको उधर अच्छे से पढ़ना है, उसकी सुविधा होना चाहिए। मेरा जितना ताकत है, समर्थ है, उसके हिसाब से उसको मिलना है। आई एम पेइंग द फीस एंड माई चाइल्ड शुड गेट द प्रॉपर रिटर्न्स फॉर दैट। तो मैं चाहता हूँ जो 3-4 पेरेंट्स आए हैं, उनका ओपिनियन क्या है कॉलेज के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके ये जो अनुष्ठान के बारे में क्या ओपिनियन है, मैं सुनना चाहता हूँ। पहले पेरेंट्स। माझं नाव संजय लक्ष्मी भालेराव, राहणार वडनेरवरून. म्हणजे आमच्या कॉलेजची जी शिस्त आहे ती खूप भारी आहे. आणि जे इथं वातावरण आहे इतकं सुंदर आहे का काहीतरी सुंदर. त्यात आमच्या मुलांना पळण खूप छान आहे, इथं सर्व सुविधा आहे, त्याच्यामुळे एकदम आम्ही खुश आहे. जसे फीच्या बारे आहेत, कमीत कमी फीमध्ये त्यांना जास्त ते करता आलं पाहिजे. त्यांना ड्रेस एक साईड मिळाले पाहिजे तुमच्याकडनं. नहीं, और क्या करना है सोच के बताइए। पुरं जास्त शिक्षण त्यांना इथेच मिळालं पाहिजे, काही मिळालं पाहिजे. हां, पुढचं जे शिक्षण त्यांना इथंच मिळालं पाहिजे. सगळं कॉम्प्युटराईज म्हणा, हे म्हणा, ते सगळं इथंच मिळालं पाहिजे. म्हणजे इथून पुढचं जे शिक्षण पाहिजे. बोल रहे हैं क्या हायर एजुकेशन है वो इधर ही होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा होती है वो बाहर थोड़ा भीड़ ज़्यादा है ना, ट्रैफिक इधर पिंपल कॉलेज है, उधर जाने के लिए घंटा लगता है ट्रैफिक की वजह से. तो इधर ही हायर एजुकेशन इथं सुधारणा झाली पाहिजे, इथं सुविधा झाली पाहिजे आमच्या. हां, पोस्ट ग्रॅज्युएशन इधर शुरू होना है. और कुछ बोलना है? नेक्स्ट तो उनके साथ फिर आपकी बात होती है? आपका बेटा है कि बेटी है? बेटा है. बेटा? हाँ, बेटा है. तो फिर वो आप उसके साथ बात करते हो कॉलेज में क्या हुआ, कैसा रहा? करते हैं बात, करते हैं. क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है वहाँ? हाँ, नहीं वो तो बोलता है कि वो इधर बहुत बढ़िया कॉलेज है, शिक्षक भी बहुत बढ़िया है, इससे आगे भी होना चाहिए था. बोले ऐसा पापा, ऐसा होना चाहिए बोलते कि आगे भी यहाँ आगे भी इधर कॉलेज होना चाहिए. आगे और क्लास पढ़ाने के लिए ऐसा तो मेरे इधर से वो उपलब्ध हो जाता है ना, जब करेंगे तो चाहे ना तो कैसा उसको बढ़ाने के लिए आगे क्लास क्या बोलते हैं वो कहाँ से है? नहीं, केंद्र सरकार तो दे देंगे ना. हाँ, तो इसलिए तो तुम्हारे साथ बोल रहे हैं ना. चलो उनको खामोश आवाज नहीं आती. हमारी अपेक्षा है तुम्हारी तरफ से कोई होना चाहिए, कोई ऐसा कुछ आपकी तरफ से भी होना चाहिए. या जैसे गवर्नमेंट में लोग होते हैं उनको बताना चाहिए कि उसको बताना चाहिए. हम तो ऐसे किसान आदमी है, हमारे तो ऐसे हो किसान जाए है तो कितना दे सकते हैं? गवर्नमेंट को देना चाहिए. हम देंगे ऐसे गवर्नमेंट देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम भी देंगे.
आपको नहीं, उधर से तो आना चाहिए ना। नहीं, जब वहाँ से आ जाए फिर आप भी दे सकते हैं, फिर कॉलेज वाले सोसाइटी भी दे। असल में क्या होता है कि ये जो कॉलेज होता है, खास स्कूल कॉलेज, ये तो पूरे समाज के लिए होता है। मतलब आपको हम सबको आप सबको इसका ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पर एक कॉलेज है, ये ग्रो करना चाहिए, बड़ा इससे फायदा सबको मिलेगा। जो काम करने वाला उसको भी फायदा है, जो यहाँ पढ़ाता है या पढ़ने वाला उसका भी फायदा है। और जितना फायदा इसमें दे सकते हो कोशिश करना है, तो कोशिश करना है। और पढ़ाई से ज़्यादा और कोई फायदा नहीं होता है। खेत में आप काम करेंगे, रुपया कमाएंगे, बहुत पैसा होगा, लेकिन फिर क्या होगा उसका? खाया खत्म हो गया, पैसा कमाया खाया खत्म। लेकिन अगर आप बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह से दें, उनका जो स्टेटस है वो बढ़ जाएगा सोसाइटी में, उनका नाम हो जाएगा, उनके नाम होने से आपका नाम हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना। बच्चों माँ बाप का नाम फिर रोशन कर देते हैं, तो हम लोग उसके लिए मेहनत करते हैं। हमारे जो स्कूल है इधर का जो है बहुत बढ़िया है। क्या आप बोलेंगे सर? आप बोलेंगे सर? आमची मुलं म्हणजे एकच 10-11 पासून शिकवलं आहे. मी पण याच शाळेमध्ये शिकलो आणि आमची मुलगी 12वी सायन्स घ्यायचं होतं. तर या मागच्या वर्षी वर्ग उघडणार होता, पण तो उघडला नाही. न उघडल्यामुळं मी ॲडमिशन घेतलं, वर्ग उघडणार होता, पण न उघडल्यामुळं तिला परत कॉमर्सलाच बसावं लागलं. म्हणजे पुढं जायची जी आमची परिस्थिती नव्हती. पिंपळगाव झालं, नाशिक झालं, न गेल्यामुळे इकडंच तिला परत करावं लागलं. मग आत्ता पण एक मुलं वर्ग आहे, तर जर पुढचा वर्ग चालू झाला तर त्याला पुढं शिकवता येईल. परिस्थितीमुळं समजा बाहेर नाही जाऊ शकत आहे. मग पुढचा वर्ग जर चालू झाला तर त्याला इकडं शिक्षण पुढचा 16वी म्हणा 17वी घेता येईल पुढं. आणि सुविधा पहिल्यापेक्षा सुविधा खूप चांगली आहे. पहिल्यापेक्षा सुविधा खूप चांगली आहे, काही अडचण नाही, काही नाही. शिक्षण पण चांगलं आहे. बाकी दुसरं काही बोलायचं उनका कहना है कि वो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, क्या है, तो उनके जो बच्चे उनको पिछले साल शुरू नहीं हुआ, वो इस साल हुआ, तो उनको बीएससी नहीं करना पड़ा, कॉमर्स में दिया उन्होंने। कॉमर्स कर रहा था बीएससी खुला म्हणजे 70% तर 71% मार्क असून म्हणजे कॉमर्स ठेवा लागला. उनको 71% मार्क था, बीएससी लेने का था, लेकिन एडमिशन नहीं मिला। तो कॉमर्स में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लिया कॉमर्स परिस्थिति की वजह से बाहर नहीं जा सकते. परिस्थिति इकोनॉमिक कंडीशन बैड है ऐसा बोल रहे हैं. समजा बाहर नहीं दे बाहर सकते एडमिशन. इकडून बाहेर जायचं, समजा पिंपळगाव जायचं 10 किलोमीटर, समजा 5-6 हजार वर्षाला भाडं लागणार. इकडे 5-6 हजारांना ॲडमिशन होणार आहे. बाहेर जास्त म्हणजे सगळं इधर ही शुरू करना चाहिए ऐसा बोलते हैं. ठीक है सर. आप बोलिए सर. Your contribution, now you have passed out of this institution. What you can do, I don't mean to say that you give 1,000 rupees, no. But in what way you can help this college to go ahead? What are the things that you need that this college should improve, so that what are the difficulties that you faced during your college days would not be faced by your future generation. So I want all of you to give your viewpoints, suggestions, so that we can think about improving the conditions, the quality of this college. One by one, please. मेरा नाम समाधान भाईचंद है. इस कॉलेज का पूर्व छात्र हूँ.
जब हम कॉलेज में थे तब उतना कॉलेज डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए 4-5 साल पहले 2015 में तब मैंने कॉलेज देखा था। अब आज देख रहा हूँ बहुत बड़ा डिफरेंट हुआ है। कॉलेज की बिल्डिंग बड़ी हुई है, बस फैसिलिटीज अवेलेबल हुई है, जिम अवेलेबल है कॉलेज को, बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सारे ऐसे बदलाव है। कैंपस बहुत बड़ा हुआ है, सब कैंपस अंडर सीसीटीवी है, बहुत ऐसे बदलाव देखे। लेकिन कुछ सजेशन ऐसे है कि आप हायर लेवल का एजुकेशन होना चाहिए, लाइक पीजी लेवल का। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है, और भी सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। देन थोड़ा जिम का जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट बढ़ाना चाहिए। स्पोर्ट के कुछ लेवल बढ़ानी चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इसी कॉलेज में। कॉलेज? यस। अच्छा। मैं इस कॉलेज को बुलाना चाहता हूँ। इस कॉलेज का जो फैसिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि कॉलेज की ट्रिप निकलती है, वो ट्रिप भी ऐसे बहुत ही अच्छे से होती है। जो NSS कैंप है वो भी बाजू के गाँव में ही जाते हैं। एक कैंप था जो बहादुर में हो 3 कॉलेज मिलकर था, और एक बाजू में से रोड काटे में था। उधर भी बहुत ही अच्छा होगा क्या, और बाकी अदर फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। मैं इसी कॉलेज में थी, मैं इस कॉलेज की पुरानी छात्र हूँ। यहाँ का कॉलेज बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा है, क्योंकि हम इस कॉलेज में ही पढ़े वाले हैं। आज मैं CMA कर रही हूँ इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमें जो कुछ फ्यूचर के बारे में कराने के लिए उसको कर रहे थे। और यहाँ पर जो NSS का डिपार्टमेंट है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि NSS की डिपार्टमेंट से ही बच्चे आगे आ रहे हैं। मैं अब कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर जो लड़कियों के लिए पहले सुविधाएं नहीं थी, इसी कारण गर्ल्स की कमी थी। तो हमारे इस कॉलेज ने और कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने खोज डाला कि लड़कियाँ क्यों कम है, क्यों आ नहीं रही है। तो सर ने बस की सुविधाएं भी उपलब्ध कर दी। और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो कुछ विभाग है वो अलग अलग क्लासरूम में है। इसकी वजह से हर डिपार्टमेंट हमें बहुत आसानी से उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी। इस कॉलेज में मुझे क्या दिया बताना चाहता हूँ मैं। सर मैं पहले खेत में काम करता था, और यहाँ पहला हमारी पहली बैच थी इस कॉलेज की। और यहाँ से पहले 12th तक ही इधर कॉलेज था। मैंने 12th तक पढ़ा, और बाद में घर वाले बोले यहाँ से कॉलेज बहुत लंबा था, तो इसलिए घर वाले मुझे जाने नहीं दे रहे थे कॉलेज। जब कॉलेज हुआ तब मैंने एडमिशन लिया, 1 साल में घर बैठा। उसके साथ बाद में कॉलेज हुआ तब मैंने एडमिशन लिया, पढ़ाई मेरा खत्म हुआ। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर हूँ, फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, और मेरे भी यहाँ पर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी कॉलेज की वजह से अगर ये कॉलेज नहीं होता तो मैं दूर तक पढ़ाई के लिए नहीं जाता, और मैं आज ऑफिसर में होता। तो इसी कॉलेज की वजह से आज गवर्नमेंट भी जॉब करा सर। थैंक यू। सर 2008 में 12वीं क्लास पास हुआ। उसके बाद 1 साल तक खेती किया, मतलब हमारा भविष्य खेती था। उसके बाद 2009 में सेम इसके साथ जो हुआ वही मेरे साथ हुआ कि 2009 में 26 सितंबर में कॉलेज की स्थापना हुई, और फिर हमें पता चला कि गांव में कॉलेज क्या FY का खुल गए हैं। तो फिर हमने एडमिशन लिया, FY किया, FY के बाद TY कंप्लीट कर लिया। TY के बाद फिर पिताजी का भी हौसला बढ़ गया कि बच्चे कुछ कर सकता है, इसलिए पिताजी ने
मुंबई यूनिवर्सिटी में ठाणा में बीएड करवाया पिताजी ने। उसके बाद हमने बीएड भी किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे थे कि घर के परिस्थिति वैसी की वैसी थी। उसके बाद हमने अलग अलग क्षेत्र में अप्लाई किया, तो स्टाफ सिलेक्शन की एक भर्ती थी 2014 में, तो उसमें हम सीआरपीएफ डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गए सर 2014 में। अभी सर छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में पोस्टेड है हम, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में पोस्टेड है सर सीआरपीएफ। कौन सा रैंक में? सिपाही के लिए कांस्टेबल। मेरा नाम सौरभ गुप्ते है, मैं यहाँ पढ़ने में रहता हूँ। तो मेरी अभी 15 पूरी हो गई यहाँ पर। जो मेरा बीए का कोर्स है वो पूरा हुआ। तो मेरी इच्छा है कि मैं एमए करूँ, और मुझे एमए करने के लिए पिपलगांव जाना पड़ेगा, इधर से 25 किलोमीटर दूर। तो मेरा वो आने जाने का जब खर्च है, मेरी जब फैमिली है वो तो नहीं सकती, तो मेरी इच्छा है कि यहाँ पर जब एमए का कोर्स होगा तो मैं कर सकता हूँ। अच्छे कॉलेज में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे, पर जो छोटी छोटी बातें जैसे कि एमए होना, अभी इधर सारा जो इलाका है वहाँ पर सब एग्री का करते हैं, जो एग्रीकल्चर का फील्ड यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक कोर्स है ना एग्री का, वो होता तो हमारे गांव के 100 में से 100% जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 25% स्टूडेंट्स जो बीएससी करने बाहर जाते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू सर। किस तरह का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि कॉलेज की जो स्टूडेंट हैं उनकी और ज़्यादा भलाई हो। उसमें तभी हो सकता है जब आप कुछ बोलेंगे, सर्विस करेंगे और आपको कम्युनिकेट करेंगे तो इसमें से बात बनेगी। आप लोगों में जितने भी यहाँ लोग हैं, यहाँ से BA या BCom करके, कोई आपने इसे हायर एजुकेशन में कोई गया है MCom MA या PhD किसी ने आपने किया? PhD किसी ने किया? हाथ खड़ा कीजिए। 3 किसने किया? MCom तीनों ने। ओके, वो कहाँ से किया? यहाँ से कितना दूर? 25 किलोमीटर। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं MCom के बाद? क्या अभी MCom के बाद खेती कर रहे हैं? खेती में भी काम कर रहे हैं, जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप MCom के बाद खेती कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपकी जो ये एजुकेशन है उसमें कुछ काम आ सकती है खेती? हाँ, एजुकेशन काम आती है खेती में काम आ सकते हैं कि आप एजुकेटेड है, आपको नॉलेज है, इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन और भी मिल सकता है इंटरनेट से, वापस करने से आप इन्फॉर्मेशन लेके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इनकम बढ़ सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है ना, सस्टेनेबल बन सकता है। जनरली यहाँ हमने देखा ना कि यहाँ कभी कभी अगर बम्पर क्रॉप हो लेकिन 1-2 साल के बाद नुकसान भी हो सकता है, होता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है और देखना है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट उसमें कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये, वो तो अपने लिए है, लेकिन कॉलेज के लिए भी आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। कॉलेज के लिए भी आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ये वन वे आना नहीं है कि आप सिर्फ पैसों के रुपये में ठेली लेके कॉलेज में आएंगे, लेकिन आप सजेस्ट कर सकते हैं कॉलेज में आके आप कुछ कहीं इन्वॉल्व भी हो सकते हैं टीचिंग में, अपनी एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा दिला सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलेज और आगे बढ़ सकता है और आप कुछ सजेस्ट भी उनको कर सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का तो एक जो एलिमेंट होता है ना कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, उस पर एक जिम्मेदारी होती है कि उस पर अगर कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने कुछ किया है, आप वो वापस क्या देगा, ये आप लोगों को हमको देखना होता है। आप हमारे गवर्नमेंट उसको हम क्या दे सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में होते कहीं एम्प्लॉय होते तो आप वहाँ कुछ काम करते, उनको रिप्रेजेंट करते, क्योंकि जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट में जो कोई फाइल होती है ना कॉलेज की, खासतौर से स्कूल्स की, वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलती है, स्लोली चलती है। बाकी डिपार्टमेंट में चलता है, वहाँ हो के आप उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप उनके वहाँ नहीं है तो, लेकिन आप अपने तरीके से हेल्प कर सकते हैं। यहाँ आसपास आप रह रहे हैं, इसको डेवलप करने में आपका बहुत योगदान हो सकता है, हो
कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कभी आप in the form of some suggestions, in the form of contribution, like coming and discussing the issues with the administration, या आपको आपका कॉलेज डेवलपमेंट के उसमें आपके रिप्रेजेंटेशन है उसमें इलुमनी का होता है क्या है ना इलुमनी होता है कॉलेज डेवलपमेंट कर सकते उसमें आप अपनी बात को आगे रख सकते हैं। अल्टीमेटली आपको सोसाइटी का सोचना है, तो सोसाइटी कौन होता है? हम लोग ही होते हैं, आप लोग ही होते हैं, आपके घर वाले, आपकी भाई बहन, आपका हमसाया, आपका रिलेटिव। तो एक दफ़ा अगर हम कुछ एक्सपीरियंस से कुछ बात कर सकते हैं जिससे दूसरों को फायदा मिलेगा तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो ये जब ध्यान में होगा इंसान को तब पॉसिबल है, अगर उसको ध्यान में नहीं रहेगी तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है ना, थैंक यू। मैं बात करूँगी प्राचीन समय की कि प्राचीन समय में जब स्टूडेंट्स आश्रम में पढ़ते थे उसके बाद उनकी शिक्षा खत्म होने के बाद गुरु दक्षिणा देते थे। तो दक्षिणा डजंट मीन कि कोई फाइनेंशियल स्वरूप में हो किसी भी तरह से। तो एज अ अल्यूमनाई आपकी भी कॉलेज की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक्टिव रह के ये कॉलेज जो आपको कुछ दिया है कॉलेज ने, तो उसके डेवलपमेंट के लिए आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कि पढ़ लिया, आगे बढ़ रहे, लेकिन अभी और भी आपने जो पाया है आगे, तो उसका बेनिफिट ये कॉलेज के प्रोफेसर को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिले और ये कॉलेज आगे जाए, इसका आपको प्रयत्न करना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अलुमनी एसोसिएशन में मेंबर बने तो इट विल बी रियली बेनिफिटेड फॉर द कॉलेज। एंड आप और कौन से टाइप के आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ये आप बता सकते हैं कि कौन से वे से आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कॉलेज में। कॉलेज में जैसे ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल एड देना है, कुछ भी किसी भी तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे कोई आपके आइडिया है कि आप किस तरह से आप कॉलेज को हेल्प कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नपूर्णा आप क्या करते हैं? स्टूडेंट का एडमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एनसीटीसी डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट को शिंदे सर टैली क्या करते हैं सर आप? अकाउंट टैली अच्छा अच्छा not online. This Tally is the accounting program. Account is a software that we use. No, online नहीं. Hello. ये सब चार्ट लगा नहीं स्टूडेंट्स हाँ चार्ट लगा है चार्ट 2009 में कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ 54,300 10-11 यहाँ से नहीं बैंक के वो यादें डीबीटी पहले होता था कैश अभी नहीं। कैश अभी एक रुपया भी नहीं होता। उनका अकाउंट होता है वहाँ? अकाउंट होते हैं, फॉर्म भरते हैं ना वो सब। आपका कौन सा बैंक है? महाराष्ट्र अपना बैंक है? बैंक महाराष्ट्र, पंजाब महाराष्ट्र नहीं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ठीक है, वो मार्जिन नहीं हुआ। जैसे लड़के लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, क्या करते हैं वो फॉर्म छानबीन करते हैं, देखते हैं बराबर है कि नहीं, उसका एनुअल इनकम क्या क्या है, उसके कास्ट सर्टिफिकेट सब डॉक्यूमेंट, और हम फॉर्म जो है ना वो फॉरवर्ड कर देते हैं समाज कल्याण ऑफिस या आदिवासी विकल्प को। ठीक
pleasure for the start cultural event by team chairperson Professor Jagdish Kumar Patnaik, Pro Vice Chancellor, Mirzapur University, Professor Gulam Bhatt, Member Coordinator, Dean Principal, Mahila Arts College, Gujarat, and our honorable dignitaries also, Honorable Uttam Baba Balirao, ex-MLA, MEP Director Tanwar, Engineer Dilip Rao Dharwar, CDC Chairman, Honorable Popatra Paturkar, Honorable DL Baba Paturkar, Honorable Dattatreya Chinde, Bhausaheb Thomre, Industrial Representative, Ashok Gatare, Bhausaheb Balirao, and all dignitaries present, the parents and all dear students who are come to celebrate this event. I heartily welcome to this cultural event. I invite to Sheetal Pawar to start this cultural event. से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन हमारे जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। वैसे तो बहुत खास लोग मिलते हैं हमारे जिंदगी में, बहुत खास लोग मिलते हैं हमारे जिंदगी में, उनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बनता है, उनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। First of all, I would like to welcome Honorable Chief Guest, Professor Jagdish Kumar Patnaik Sir, Professor Gulam Bhatt Sir, Dr. Hina Patel Ma'am, and our Principal Sri Bhagat Sir, all teachers and non-teaching staff, and all students present here. A very warm welcome to absolutely wonderful, beautiful, and a prosperous day that brings together so many special people like you. Friends, it is said that it's mandatory to have a God's name at the beginning of all cultural program or any other program we have. So I would like to invite here on the stage Payal and Rushali for the presentation of Ganesh Vandana. किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से होती है, क्योंकि सर्वप्रथम वंदना है भगवान गणेश की, सर्वप्रथम वंदना है भगवान गणेश की, क्योंकि उन्हीं के वजह से ही बरसती है कृपा ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम का विद गणेश वंदना। थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टार्ट विद द गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि beautiful and awesome performance. Thank you so much. Please give a big hand for them. Thank you so much, guys.
बोला पुंडलिका वरदे श्री विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। मैं इस महाराष्ट्र का किसान बोल रहा हूँ। सबसे पहले इस महाराष्ट्र का किसान तुम सभी को प्रणाम करना चाहता है। तुम सभी को मेरा प्रणाम। महाराष्ट्र में किसान को शान, मान और पहचान है, पर महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में किसान की हालत बहुत गंभीर है। इस किसान की हालत मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। खेत में बहुत मेहनत करता हूँ, कभी कभी तो एक बार की रोटी अभी नहीं मिलती, कभी एक बार की रोटी अभी नहीं मिलती। हे भगवान, कभी एक बार की रोटी अभी नहीं मिलती। मेरे खेत में जो फसल है उनको दाम नहीं है भगवान, उनको दाम नहीं है। बारिश की बहुत याद कर रहा है, बारिश की बहुत याद कर रहा था, पर जब बारिश की जरूरत थी तब नहीं आया, और जब जरूरत न तभी आकर